everybody. We are delighted to welcome you all here today on the Sunday morning to witness the live demonstration on battlecraft in line of control scenario named as Kargil War. I, on behalf of Colonel S.K. Shah, Officer Commanding and the entire DSC company, extend a warm, hearty welcome to our Chief Guest, General Manager Sri Bharat Singh and Srimati Sushma Singh. We also welcome Sri V.M. Rao, Additional General Manager, and Mrs. Rao. This is a training cum demonstration program. The aim of this program are, firstly, to impart a realistic training to the DSC Jawans, especially in view of the prevailing adverse security scenario in the country, so that they are capable of tackling any kind of security threat, including a terrorist attack or left-wing extremist type. Secondly, to instill a sense of patriotism among all and to inspire and motivate the children to join armed forces to serve our motherland. Thirdly, to familiarize and acquaint the audience with actual battlefield scenario and to give an insight into the life of soldiers in the line of control and in the hard field conditions. Before we proceed ahead with the demonstration, I would like to apprise you that before any military action like this, a lot of planning and coordination will take place at strategic and tactical levels. That is, command, corps, divisional and brigade levels. Prior to such actions, normally proper support mechanism like airstrike, artillery fire, aerial and satellite recce, etc. will also take place. Aerial and satellite photo will provide us general information about the extent and depth of enemy defenses and the type of weapon they are holding. Airstrike and artillery fire will soften the target and weaken the enemy before the actual attack is launched. Ammunition dumping will also take place to cater for the expenditure of ammunition during the war. In military technology, attacks are of two types. Firstly, hasty attack. That is a quick attack, taking the advantage of the situation to take the enemy by total surprise. Secondly, deliberate attack. As the name suggests, the characteristics of deliberate attack are detailed planning, detailed recce and thorough preparation. As per the military principle, the defender-attacker ratio is 1:3. That is, if the strength of the enemy is 10, then to capture that particular post, attacker needs a strength of 30. That is, to capture one section, we need one platoon. To capture one platoon, we need one company. And to capture one company, we need one battalion. And if you have to capture one battalion, then we need a force level of one brigade. In mountainous terrain, the ratio will be 1:6. And in the high altitude, it may go up to 1:9. Here, we are depicting one enemy platoon deployed on Tiger Hill, and accordingly, one company of Indian Army is going for the attack. If you remember, Tiger Hill was occupied by Pakistani army regulars in the guise of Mujahideen. Due to the constraints of the terrain, we have truncated and restricted the strength and extent on both sides, that is, own side and enemy side. Actual ground conditions are extremely difficult and the terrain is treacherous. This deployment, as being shown to you in front, may look simple, but in reality, it is unimaginable due to terrain pattern and numerous obstacles deployed by the enemy on the route immediately after the LC till the enemy defenses, where the final attack is launched. The casualty figure is worked out based on the degree of delay elements
placed in between their defenses and LC. I would like to educate you by naming some of these obstacles that the attacker have to face before getting onto the final assault. They are minefield with the anti-tank mines and anti-personnel mines, heavy machine guns, that is known as HMG, light machine guns, LMG, recoilless gun, that is RCL, 81mm mortars, snipers and RT guns. And you must be wondering as to where are our BMB-2 Sarat used in this operation. Had the similar operation been launched in Jammu, Punjab or Rajasthan sector, the tanks and BMB Sarat would have been used as a part of this offensive operation, depending on the gravity of enemy threat. They move in front of these infantry assaulting forces and clear the minefields and the delaying elements, as I have just mentioned, to make it convenient for the assaulting forces to launch attack and deny counter-attack on the objective to cause maximum casualty. Now, without any further delay, let us move towards the battlefield. Indian troops are bubbling with the josh and determination to capture the Tiger Hill. Best of luck to them, and now I hand over to Nayak Subedar Madhugar for the further conduct of the demonstration. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नायब सूबेदार क्लर्क मधुकर। आज के मुख्य अतिथि हमारे जनरल मैनेजर श्री भरत सिंह साहब तथा सभी उपस्थित अधिकारीगण, स्कूल बच्चे और मेरे साथियों, आप अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थिति दी तथा इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं तथा हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एच.के. साहू साहब और डीएससी परिवार के तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम लोग बॉर्डर से बहुत ही दूर है, इसीलिए वहां पर जो भी फौज तैनात है वह किन किन परिस्थितियों से गुजरती है इसकी हम लोगों को जानकारी नहीं है। दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है और दोनों 3 बार युद्ध भी हो चुका है, जिसमें दुश्मन को तीनों बार पराजित होना पड़ा है। इसके बाद 1971 में दुश्मन देश के 2 टुकड़े भी हो चुके हैं और उसमें 90,000 सैनिक भी बंदी बना लिए गए थे। इस शर्मनाक ऐतिहासिक हार को छुपाने के लिए या उसका बदला लेने के लिए पिछले 20 सालों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है और वो अपने देश में ट्रेनिंग कैंप लगा के उग्रवादियों को ट्रेनिंग दे के हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ हमेशा मौके का फायदा उठाते हुए हमारे देश के बॉर्डर पर तैनात फौजियों को तंग करने की कोशिश करते हैं। फिर भी दुश्मन हिंदुस्तान की एकता एवं अखंडता को भंग करने की कोशिश लगातार करता है और उसमें कामयाबी नहीं हो पा रहा है। फिर भी अपनी घिनौनी हरकतों से बांध नहीं आ रहा है। अभी LCNA की लाइन ऑफ कंट्रोल इलाके में पिछले 3 हफ्ते से तनाव बढ़ चुका है और हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अभी आपके सामने जो ग्राउंड देख रहे हैं, यह भारत और पाकिस्तान की पहाड़ियां हैं, जो कि कारगिल और द्रास का एरिया है। अभी आप अपने पूरे बाएं तरफ देखें, जो कि दुश्मन का 18 बलूच रेजिमेंट की चार्ली कंपनी तैनात है, जिसकी नफरी तकरीबन 135 है, जो कि 3 प्लाटून में बटा हुआ है। टाइगर हिल के ऊपर चार्ली कंपनी का नंबर 3 प्लाटून तैनात है। इसका प्लाटून कमांडर मोहम्मद अतलब है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान का रहने वाला है। यह कमांडर उग्रवादियों को घुसपैठ कराने में मदद करता है और हमारे देश तथा जवानों को नुकसान पहुंचाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई तकरीबन 16,500 फीट है। यह टाइगर हिल कुछ दिन पहले हमारा था। अभी मैं आपको जमीनी निशाने के बारे में वाकिफ करना चाहता हूं। अभी ध्यान से देखें, जो कि पाकिस्तान का हरे रंग का झंडा दिख रहा है। यह पाकिस्तान की एक पोस्ट है, जो कि टाइगर हिल के नाम से जाना जाता है। इससे थोड़ा आगे देखें
जो पर्पल कलर के झंडे के साथ 2 जवान बैठे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान का ओपीएनई यानी कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। यह पाकिस्तान डिफेंस एरिया से 250 से 300 मीटर दूर होता है। यहाँ पर जमीन की कमी के कारण नजदीक दिखाया गया है और इसका काम आगे की पूरी जानकारी अपने पीछे तैनात कंपनी कमांडर को देना है। अभी इसी लाइन में थोड़ा आगे देखिए, जो पीले रंग के झंडे लगे हुए हैं और साथ में सफेद माइन टेप लगा हुआ है, जो कि आगे लाल झंडे तक का बीच का एरिया पाकिस्तान का माइन एरिया दर्शाता है। और उसमें जो बड़े राउंड क्रॉस मार्क किए हैं उसमें एंटी टैंक माइन लगे हुए हैं और जो छोटे त्रिकोण में मार्क किए गए हैं वहां पर एंटी पर्सनल माइन को दर्शाते हैं। यह बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक की मार्क करके दर्शाए हैं। बाकी सब जमीन के अंदर लगे हुए हैं, जिसकी क्षमता 30 किलो वजन सहन करने की होती है। उसके ऊपर ज्यादा होने पर या गिरने पर यह फट जाते हैं और भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तथा यह कहां पर लगे हुए हैं इसकी जानकारी सेटिंग और चार्ट में होती है। वो चार्ट के सहायता से इन्फेंट्री सेफ्टी लाइन को चुनकर आगे ट्रूप्स को बढ़ाना होता है। यह जमीन में इंजीनियर ग्रुप ही लगाता है और यह माइन फील्ड एरिया तकरीबन 200 मीटर का होता है। अभी जिस प्रकार पाकिस्तान का माइन एरिया हुआ, उसी तरह भारत का भी माइन एरिया लगाया हुआ है। अभी आप अपने पूरे दाहिने देखें, जो कि भारत का तिरंगा झंडा लगा हुआ है और वहां पर 18 गढ़वाल राइफल की चार्ली कंपनी तैनात है, जिसका कमांडर शैतान सिंह है तथा कुछ जवान ड्यूटी पर तैनात है। उसके आगे बीएमपी और आर्टिलरी लगी हुई है। अभी 18 गढ़वाल रेजिमेंट के शिव साहब ने पूरी रेजिमेंट का सैनिक सम्मेलन संबोधित किया और किस तरह जवानों को संबोधित कर रहे हैं, आप सुने। मैं 18 गढ़वाल रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सतबीर सिंह चार्ली कंपनी को संबोधित करके बोल रहा हूँ। मेरे वीर जवानों, आज शाम को हमें हमला करके टाइगर हिल को अपने कब्जे में लेना है। मैं एक बार फिर दोबारा आप लोगों से बोल रहा हूं कि हमें हर हालत में टाइगर हिल पर कब्जा करना है। हमला करने के लिए मूव करने का समय 1800 आवर्स होगा और धावा करने का समय 1830 बजे होगा। टाइगर हिल का पश्चिम साइड से इसके लिए मैं 7 प्लाटून को और पूरब साइड से 1 प्लाटून को हमला करने को नियुक्त करता हूं तथा 9 प्लाटून इसको फायर सपोर्ट देगा। हमला के लिए एडवांस करने के वक्त प्रॉपर फील्ड का फॉलो किया जाएगा और आदेश से पहले कोई भी फायर नहीं खोलेगा और सभी फायर डिसिप्लिन अमल करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि चार्ली कंपनी ये काम हर हालत में पूरा करेगा, इसलिए मैं यह टास्क चार्ली कंपनी को दिया है और कल सूरज निकलते वक्त दुनिया को टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहराता हुआ नजर आना चाहिए। अब आप लोग हमले के लिए तैयार हो। भारत माता की जय। इसके पश्चात कंपनी कमांडर शैतान सिंह ने अपने जवानों को बताया कि आज शाम को 6 बजे हमें एडवांस करना है तथा टाइगर हिल पर 6:30 बजे हमला बोल देना है। अभी कंपनी कमांडर ने अपने 3 जवानों को एलसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास दुश्मन की जानकारी हेतु रेकी पेट्रोलिंग की तरह भेज रहे हैं और उसके कमांडर हवलदार जसबीर सिंह है। आप देखें, अभी आप देखें कि रेकी पेट्रोलिंग अपने आप को दुश्मन से नजरों से बचाते हुए किस तरह आगे बढ़ रहे हैं।
ఇచ్చిన ఇంకా కలిపరి देखिए अपने आप को छुपाते हुए जवान किस तरह आगे की हरकत कर रहे हैं। जब भी LCNA के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जवानों को पहुंचना होता है, तब अपना आप को छोटा खाका बनाते हुए आगे की हरकत बढ़ना होता है। अभी जवान छुपाव हासिल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। यह जवान LC लाइन के पास आने के बाद आगे की जानकारी पूरी हासिल करेंगे। इनके पास बाइनोकुलर, कंपास और मैप होता है। उस सहायता से ये जवान आगे दुश्मन के पोस्ट का ग्रिड रेफरेंस निकालते हैं। अभी यह जवान LCNA के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहुंच गए हैं। अभी आप अपने बाएं तरफ देखें, पाकिस्तान के OP फोर्स ने आपस में बात कर रहे हैं, उनको आगे की हरकत कुछ नजर आ रहे हैं, इसीलिए वो आपस में बात करते हुए एक दूसरे के जगह पर वापस जा रहे हैं। अभी अपनी ब्रेकी पेट्रोलिंग पार्टी आगे की जानकारी हासिल कर रहे हैं। मैप निकालकर अपना देख रहे हैं, ग्रिड रेफरेंस निकाल रहे हैं। पूरी जानकारी हासिल कर दिया है अभी जवानों ने। अभी इसके पश्चात जाने की तैयारी में है। वह आप वापस जा रहे हैं, आपस में इशारा करते हुए अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब भी दुश्मन अभी यह जवान आगे पीछे देखते हुए अपने आप को छुपाते हुए दुश्मन से आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये जवान अपने पोस्ट के तरफ जा रहे हैं। वहां पर जाकर अपने कमांडर को रिपोर्ट देंगे। अभी ये जवान अपने पोस्ट के पास पहुंच गए हैं। अपने कंपनी कमांडर को किस तरह रिपोर्ट दे रहे हैं आप देखें तथा सुने। जैन साहब, मैं हवलदार जसबीर सिंह अपने 2 साथियों के साथ आपके आदेश के अनुसार टाइगर हिल का रिक्की करके आया हूं। श्रीमान जी, हमें दुश्मन का डिफेंस का एक्सटेंड तकरीबन 200 से 250 मीटर लगा है। तकरीबन 10 से 12 मोर्चा नजर आए हैं। उनका डिफेंस से भी तकरीबन 200 मीटर आगे माइनफील्ड नजर आया है। विपन उनके पास HMG-2, LMG-3, मोटर लॉन्चर 2, RPG-3, LMG-3 और उनके पास पर्सनल विपन नजर आए हैं तथा उनके डिफेंस के आगे उनका OP
और डिलेइंग एलिमेंट भी नजर आया है। जय हिंद श्रीमान। सीओ साहब ने रिपोर्ट को सुना और कंपनी कमांडर को आदेश दिया कि ठीक शाम 6 बजे एडवांस किया जाएगा और 6:30 बजे टाइगर हिल पर हमला किया जाएगा तथा टाइगर हिल पर हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। कंपनी कमांडर ने अपने समय के अनुसार अपने जवानों को तैयार रहने के लिए आदेश दिया। अभी 6 बजने वाले हैं, थोड़ा अंधेरा उजेला का समय हो गया है। अभी सभी जवानों को एडवांस का ऑर्डर दे दिया है। अभी जवान एडवांस हो रहे हैं। जब भी आगे की एडवांस होते हैं अपने आप को छुपा में रखते हुए आगे की हरकत करते हैं। होतं. जब भी जवान आगे की तरफ हरकत करते हैं सबसे पहले अपने आप का छोटा खाका बनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं ताकि दुश्मन को पता ना चले कि यहाँ पर हरकत हो रही है। यह जवान अपने कमांडर के इशारों पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बॉर्डर एरिया के अंदर कमांडर की बहुत अहमियत होती है। जवानों को आगे किस तरह लेकर जाता है ये उसी के ऊपर निर्भर होता है। जवानों को बीच बीच में इशारा करते हुए कमांडर आगे की तरफ हरकत कर रहे हैं। याद रहे कि राइट साइड की सेना इंडियन जैसे जैसे एलसी यानी के लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन के पास पहुंचेंगे उस तरह अपना खाका छोटा छोटा बनाते हुए आगे हरकत करेंगे। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन के पास पहुंचेंगे तब यह जवान लाइन पोजीशन से आगे की बढ़त करेंगे। आप देखें कमांडर का इशारा, उसके अनुसार जवान किस तरह आगे की तरफ हरकत कर रहे हैं। अभी कमांडर ने लाइन पोजीशन में जवानों को एडवांस के लिए बताया गया है। अभी पूरे जवान एडवांस हो रहे हैं लाइन पोजीशन में। यह जवान अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहुंचने वाले हैं। आपको जैसे कि मैं पहले बताया पीला कलर का झंडा यानी साथ में सफेद पट्टी लगी हुई है, यह इंडिया की माइन एरिया है। अभी वहां पर पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं कि आगे की कार्रवाई किस तरह करते हैं।
अभी यह माइन एरिया के पास पहुंचने के बाद इनके कमांडर इशारों से जवानों को बताएंगे कि आगे की हरकत नहीं करना है। उसी तरह जवान रुक जाएंगे। कमांडर ने इशारा कर दिया है, जवान रुक गए हैं। अभी हमारे जवान माइंस एरिया तक पहुंच गए हैं और कमांडर सर्च करते हुए आगे बढ़ेंगे। माइन एरिया को सर्च कर रहे हैं ताकि हादसा ना हो। इसमें बहुत सारे माइन लगे हुए हैं। अभी वहां पर ओपी ने देख लिया है, ओपी उधर हरकत में आ गया है। उसको ओपी पोस्ट ने उनके बॉर्डर पर हरकत देखते हुए अपने कमांडर को पीछे इशारा दे दिया है। अभी हमारे जवान रिकी करके चेक करके आगे पीछे मुड़ कर दिया है और कमांडर ने अपने जवानों को एडवांस करने के लिए बोला है। वहां पर बाएं देखे पाकिस्तान का जो पोस्ट है उसमें पूरा बाहर निकल गए वहां से और पोस्ट में डिप्लॉय हो गए। और अभी पाकिस्तान ने जवानों की यहां पर हरकत देखते हुए फायर खोल दिया है। अभी हमारे 2 जवान घायल हो गया है। उनको उठाने के लिए पीछे से स्ट्रक्चर पार्टी पहुंच रही है। स्ट्रक्चर पार्टी और दूसरा फायरमैन लिफ्ट ले जा रहे हैं। अभी देखिए स्मोक कैंडल जलाकर उसके धुएं के सहारे अपने आप को छिपाते हुए बहुत ही होशियारी से हमला बोलेंगे तथा इलाके में दाखिल हो जाएंगे। अभी माइन ब्लास्ट हो गया है और ब्लास्ट के कारण हमारे 2 जवान घायल हो गया है। अभी आप आगे देख सकते हैं हमारा एक जवान पाकिस्तान के फायरिंग में घायल हो गया है। आपके सामने जमीन पर पड़ा हुआ है। अभी किस तरह से दुश्मन के जवानों को मार गिरा रहे हैं आप देख सकते हैं। दुश्मन के 12 जवान मार गिराए हैं तथा 2 जवानों को बंदी किया गया है। पाकिस्तान का झंडा निकालकर अपने देश का तिरंगा झंडा लहरा दिया है। अपने सैनिक साथियों को जानकारी दी जा रही है कि हमने टाइगर हिल पर जीत प्राप्त कर दिया है।
अभी कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह ने अपने सीओ साहब को रिपोर्ट दे दिया है कि हम टाइगर हिल पर कब्जा करने में कामयाब रहे। इससे सीओ साहब ने एक जवान सिपाही योगेंद्र सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया है तथा बाकी सभी जवानों को शाबाशी दी। यहाँ पर यह कारगिल वार समाप्त होता है। जय हिंद। Nonton